Good evening and welcome. You're watching the News Hour Agenda. I'm Padmaja Joshi. When there's just hours left for the first phase of polling to happen in Gujarat, it's hardly surprising that every party has thrown in their trump card in the ring. So what prompted the Prime Minister to speak of the Congress as a party that has done vote bank politics over terror? If yesterday in Surat he spoke of how the Congress has attacked Modi instead of attacking terror, how they have always been soft on those who are anti-India, today in Palitana, he accused the Congress again of engaging in politics of divide and rule. કોંગ્રેસ પાર્ટીની આખી મૂળભૂત વિચારા કે ભાગલા પાડોને રાજકારો ગમે તેમ કરીને લોકોને આમને સામને કરી રાખો જેથી કરીને પોતાનું બધું ગાડું ચાલે વર મરો કન્યા મરો પણ ઘર મારાનું તરફાણું ભરો આ કોંગ્રેસની ચાલાકી હતી. दिल्ली में जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे. कांग्रेस आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर से देखती है, तुष्टीकरण की दृष्टि से देखती है. दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती थी. हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं मोदी को टारगेट करने में लगी रही. Now, naturally, this set off another round of blame game with the Congress President Mallikarjun Kharge accusing the Prime Minister of being Jhoot Ka Badshah, who does only virtue signaling and claims victimization only for the purpose of seeking votes and sympathy. और आपके जैसा आदमी जो हमेशा क्लेम करते हैं मैं गरीब हूं, मैं वो, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं. कम से मैं तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई. और फिर बार आप बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे को किसने गालियां दिया, मेरी किसी ने कुछ कहा, मेरे को कुछ तेरी हैसियत क्या है कहा. अरे ऐसे बात कह के अगर आप सिंपैथी जमाने की कोशिश करें तो लोग अब होशियार हो गए, उतने बेवकूफ नहीं है. एक बात चलती है, एक बार अगर झूठ बोलेंगे लोग सुन लेंगे, 2 बार भी बोलेंगे तो भी सुन लेंगे. कितने बार झूठ बोलेंगे, झूठ पर झूठ, ये झूठों के सरदार है. The question though arises is, why is the issue of terror appeasement, being soft on terror, being brought up at the last moment just before Gujarat is set to poll? Is this a trump card in order to polarize, and does this betray a sign of nervousness on the part of the Bharatiya Janata Party? And finally, is there any merit in the Congress's charge that all of these allegations are nothing more than sympathy seeking by the Prime Minister and a bundle of lies? You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. All right, joining us on the debate, we have Dr. Sumansi Raman, Dushyant Nagar and Lokesh Jindal, all political analysts, senior journalist Harshvardhan Tripathi. But my first question is to you, Sanju Verma, national spokesperson of the BJP. Surefire, Ramband, चुनाव से पहले पाकिस्तान, इमरान, परवेज मुशर्रफ, अहमद पटेल, why? Padmaja, I want to make one thing very clear. This entire narrative that the Congress has been peddling, कि BJP डर गई है. 27 years of anti-incumbency is going to catch up with them in 2022. And that is the reason we bring up issues like Hindu-Muslim divide, which are polarizing narratives. So let me set the record straight. Point number 1, जीतेंगे तो हम ही.
Rahul Gandhi spent barely 48 hours in Gujarat. That shows the kind of seriousness he has with respect to the upcoming Gujarat elections. Be that as it may, I think what the Prime Minister said resonates with every honest tax-paying citizen and not merely the voters of Gujarat, because terrorism is something which is central to this entire narrative that the Narendra Modi government has established with respect to the fact that in the last 8 years of the Modi government's dispensation, terrorism has been dealt a body blow. And if you recall, Padmaja, there was a time in 1993, after the Mumbai blast, when a few years back, Yaqub Memon was given the capital punishment. We saw a whole bunch of the Congressy ecosystem, leftist, academicians, left-leaning journalists, सबने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था at 2 a.m. Say please, फांसी की सजा मत दीजिए याकूब मेमन को. But look at the irony of it. Okay. That when Padmaja, let me Okay, no, one at a time. Before we go off into Yaqub Memon and Dawood Ibrahim, let's at least get everyone's views in. Just a second, hold on. Let me get in Lokesh Jindal. Lokesh Jindal, at the end of the day, Gujarat में धंधा बहुत जरूरी है. And the worst thing that can happen is violence, curfews, and अगर वहां पर riots हो. Even Amit Shah, Narendra Modi, everyone on the election trail has said कि ये कोई वोट की बात नहीं है. सच ये है कि 2002 के पहले जब कांग्रेस का राज्य था, इनफैक्ट 2002 के पहले भी जब बीजेपी की सरकार से पहले का वो वक्त था जब कर्फ्यू, राइटिंग एंड जनरली उगाही का वक्त होता था. देयर यूज्ड टू बी एक्सटॉर्शन, देयर वर स्ट्रॉन्ग मेन इन सिटीज लाइक जामनगर, इन पोरबंदर, एंड नाउ दैट इज गॉन. गुजराती के लिए अब धंधा करना आसान हो गया है. And that's the bottom line. And that's what the Prime Minister said, which resonates with the ordinary Gujarati. Location. So you want to say that 2002 is a watermark in Gujarat's politics because the government over here is glorifying its deeds? I mean, it is so shameful. The government is glorifying itself for the 2002 misdeeds that it did, for the lynching that it did. It is coming and honoring Bilkis Bano's family's murderers, and the government did not do any lynching. Padmaja, please, madam, your chance is over. Let me. Okay, you will get time to respond, ma'am. You will get time to respond. Let him finish his point. Let him finish his point. Now the point is, amid this environment. Sir, by the way, who is glorifying lynching? All that was said was that rioters and those who engage in violence are taught a lesson. Saw how the perpetrators, how those who were convicted, speech were distributed, and following this they were given tickets. So when I'm talking about the people of Gujarat, they have made up their mind, and on 8th of December, there is going to be a huge change in Gujarat, and BJP has sensed it. Okay, sir, let's not look at the crystal ball. You tell me simply, do you think that the issue resonates with the common Gujarati who says कि हाँ, 2014 के बाद देश में और 2002 के बाद गुजरात में दंगे नहीं हुए हैं? Madam, a common Gujarati is a peace-loving Indian. He does not buy this Modi's narrative of having some form of targeting of a particular community and time and again resorting to communal riots. Dhanda karna hai unhe, Dhando is what is more important. They are more concerned with... Okay, targeting of a community. Quick rebuttal from Sanju Verma. Ordinary Gujarati will not buy this targeting of a community by talking of terrorism. Terrorism bahana hai, basically Muslim ko demonize karna hai. Sanju Verma. Padmaja, I have been watching almost all the videos that you put up when you were in Gujarat and you interviewed a cross-section of voters. And, correct me if I'm wrong, but if not 9, 8 out of 10 voters told you that आएगी तो वापस भाजपा गुजरात में, and they gave various reasons. The excellent law and order situation being one of them. I just want to say one thing. The reason why the Prime Minister is bringing this, Padmaja, is please, let's not fool ourselves. Even as recently as June 2022, when the Supreme Court said that Teesta Setalvad acted with malefied intent, acted with an ulterior motive to keep the pot boiling. What did we see? Did we see anyone from the Congress condemning the fact that they had demonized, tried to malign, tried to vilify, tried to sully the Prime Minister's image for more than 2 decades? Ulta, they went to Jantar Mantar to protest against Teesta Setalvad being arrested subsequently after 2 weeks. When the ATS went and knocked on her doorsteps and arrested her, ye logon ne bhashan diya, democracy has been crushed. Why was Teesta Setalvad arrested? And she was arrested after the Supreme Court verdict.
terror apologists, Dr. Sumansi Raman. Terror apologists, and it's not just about the Congress, it is also those who remain quiet. And that is what is being called out. Election or no election? Padmaja, no, don't say election or no election. It is election. That is why it is this dialogue has gone along these lines. Let me tell you, here is a party which is in power for 27 years. They are going to the electorate saying, give us 5 more years. And what is their pitch? That a party which has not been in power for 27 years is being targeted. A party which has not been in power in the center for 8 years is being targeted. And people are expected to vote. They are not being told, look, in the 3 chief ministers in the last 8 years, Anandiben Patel, Vijay Rupani and Mr. Bhupendra Patel have done a fantastic job. We have delivered on this, we have delivered on that. Therefore, keep the good times rolling, vote BJP. Instead, they are being told Congress is doing this. We taught them, quote unquote, in inverted commas, a lesson in 2002. Is this the way that, a party is seeking re-election? Actually, it's very interesting you say that, because let me quote to you from what the Prime Minister said today in Jamnagar and Rajkot. Yes, a few things that we sit here and we debate on TV, but let me quote to you portions of what the Prime Minister said today in Jamnagar. Spoke about the steps taken to boost ease of living, improve the water situation in Saurashtra, and the efforts made for MSMEs. Madam, Padmaja. सर, पानी की भी बात हो रही है, एमएसएमई की भी बात हो रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी बात हो रही है, और इसकी भी बात हो रही है। पर क्या इसको रिमाइंड कराना जरूरी है, हर्षवर्धन त्रिपाठी? जब आपकी पार्टी 27 साल सत्ता में रही है, तो आप बताइए ना, हमने इतने करोड़ घर बना दिए, हमने इतने करोड़ घरों में बिजली दे दी, इतने में पानी दे दिया। कहां आप कोई कांग्रेस को, जो कि ऑपोजिशन में बैठी है, बार बार उन्हीं की बातें याद दिलाते रहते हैं। दिस इज लाइक गिरे को 2 लात और सही टाइप का आर्ग्यूमेंट। हर्षवर्धन त्रिपाठी। पद्मजा, अभी आप भी गुजरात से होकर आई हैं, और उससे पहले मैं भी गुजरात होकर आया। 2007 के विधानसभा चुनावों से लगातार गुजरात देखता रहा हूं। जब हम लोग टीवी की बहस में ये कहते हैं कि क्यों प्रधानमंत्री दंगों की बात करने लगते हैं, क्यों आतंकवादी गतिविधियों की बात करने लगते हैं, और क्यों कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, अब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि क्यों सिर्फ बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, अस्पताल, इसी पर बात नहीं होती। और पता नहीं आपका ध्यान गया है या नहीं, लेकिन मैं जब वहां था तो अहमदाबाद के एसजी हाईवे के किनारे बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है, स्टार्टअप्स नी भरमार, गुजराती में लिखा हुआ है। मुद्रा योजना की होर्डिंग लगी हुई है, 370 की भी होर्डिंग लगी हुई है, आतंकवाद वाली होर्डिंग नहीं लगी हुई। लेकिन अगर प्रधानमंत्री अपने भाषण में ये कह रहे हैं, तो क्या ये सच नहीं है कि बाटला हाउस एनकाउंटर और अजमल कसाब, ये 2 इस देश के ऐसे नासूर हैं जिनको याद करके हर कोई परेशान हो उठता है, और दोनों में कांग्रेस की भूमिका संदेहों के घेरे में रही या नहीं रही। दिग्विजय सिंह ने बाकायदा मुंबई में महेश भट्ट के साथ ये इनको समझाइए, बीच में बोलना ठीक नहीं होता, नहीं तो मैं इनको बोलने नहीं दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। डॉक्टर, तो जब दिग्विजय सिंह 26/11 आरएसएस की साजिश कह रहे हों, और वो पूरी तरह से झूठ निकलता है, उसके मुस्लिम संपादक को अदालत में माफी मांगनी पड़ी, लेकिन वो पुस्तक छप जाती है, कांग्रेस के हाईकमान की तरफ से कुछ नहीं कहा जाता है। बाकायदा जो राष्ट्रीय सलाहकार समिति जो सोनिया जी के समय में रही, उससे जुड़े हुए लोग वो कसाब की मर्सी पिटीशन पर उसके हस्ताक्षर करने वालों में होते हैं, और राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व का फर्क बता रहे होते हैं। यहां तक कि महंगाई पर जयपुर में रैली थी और वो हिंदू और हिंदुत्व करने लगते हैं। शायद यही वजह है कि सोनिया गांधी जी को 2018 में कहना पड़ा था कि हमारी पार्टी पर मुस्लिम परस्त होने का आरोप लग गया है। लेकिन क्या यह सच नहीं कि ये जितनी घटनाएं हैं वो देश के लोगों के सामने घटी हैं? और उसमें एक सच मैं आखिरी जोड़ के अपनी बात खत्म करता हूं। 60 से 70 के दशक में 800 से ज्यादा दंगे, 800 से ज्यादा दंगे, और उसके बाद भी जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब तक हर दूसरे चौथे दंगे सुनाई देते थे। अहमदाबाद के जिस साबरमती रिवर फ्रंट पर लोग आज रात 12 बजे भी घूम रहे हैं, वहां कालूपुरा के आसपास क्या स्थिति थी, किसी से रिपोर्टर्स को पूछना चाहिए। वहां रात को स्टेशन जाने में लोगों को डर लगता था। और सिर्फ वही एक नहीं है,
पूरे गुजरात में। आज हम कह रहे हैं ना कि कहीं से भी कोई जाए, देर रात घूम रहा है, लोग खाने पीने का माहौल है, वो हमेशा गुजराती धंधा करता था। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, अपराध, आतंकवाद और इशरत जहां के लिए किसने कवर फायर दिया था? क्या इस तरह की घटनाएं चुनाव के समय में नहीं कही जाएंगी? निश्चित तौर पर कही जाएंगी। और अगर दंगा होता था, दंगा मुक्त किया, तो ये भाजपा सरकार की उपलब्धि, प्रधानमंत्री उसको जरूर बताएंगे। दुष्यंत नागर, क्योंकि बिजली पानी जितना जरूरी है उतना ही आपका अस्तित्व भी जरूरी है। और अगर बेसिक लॉ एंड ऑर्डर सेफ्टी नहीं रहेगी, अगर आपका एग्जिस्टेंस ही खतरे में पड़ जाएगा और लोग उसको जस्टिफाई करेंगे, कहेंगे कि भैया आप ही की गलती है, ये आरएसएस की साजिश है, तो आदमी तो डरेगा ना, और वोटर की जिंदगी पर वो भी असर करता है। नहीं, देखिए भारत जब आजाद हुआ, बंगाल, पंजाब और हैदराबाद, 3 बड़े राज्यों के अंदर दंगे हो रहे थे, और जो कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष है, उनके परिवार के 5 लोगों को मार दिया गया था इन्हीं दंगों के दौरान। देश में व्यापक रूप से अस्थिरता थी, कांग्रेस ने उसको संभाला, 562 रियासतों का विलय किया। उसके बाद असम में, बंगाल में, पंजाब में कई जगह स्थिरता हुई, लेकिन कांग्रेस ने उनको संभाला, देश को प्रगति के मार्ग पे आगे लेके आई। तो लोगों को यह जानकारी है, विषम परिस्थितियों में कांग्रेस ने भारत को आगे बढ़ाया है, सही नेतृत्व दिया है, और आतंकवाद से कांग्रेस सही से डील कर सकती है। कांग्रेस ने राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण रखा, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी, लेकिन भारत को आंच नहीं आने दी। यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है। अब बात करते हैं हम गुजरात के चुनाव की। गुजरात में बढ़ता हुआ कर्जा, अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई, कपड़ा उद्योग का निरंतर नीचे की तरफ जाना, और जो युवाओं की, बेरोजगारों की फौज राज्य के अंदर घूम रही है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। इसके आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर क्योंकि आप बढ़ते हुए कर्जे की बात कर रहे हैं सर, मैं आपको ये याद दिला दूं कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में, अगर आप स्टेट के बढ़ते हुए कर्जे की बात कर रहे हैं ना, कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में हिमाचल और गुजरात में क्या बोलती है, हम ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर के आएंगे। एंड ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको खुद मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने बोला है, इट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ रेवड़ी, जो उनके खुद वहां पर एनालिसिस विंग के हेड हैं प्रवीण चक्रवर्ती, उन्होंने बोला है दैट दिस इज होली फिजिकली इररिस्पॉन्सिबल। तो वो तो हो गई बढ़ते हुए खर्चे की, पर चलिए छोड़िए, अभी उसको हम छोड़ते हैं। बढ़ते हुए खर्चे की किसको चिंता है, वो तो हमने कई पार्टीज के मैनिफेस्टो में देख भी लिया है। आप अपना इस विषय के ऊपर बोलिए प्लीज। हाँ, देखिए, जब कर्जा माफ करने के लिए उद्योगपतियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम पे हम बहुत डिबेट कर चुके हैं। अभी की बात कीजिए कि भाई अगर एमएसएमई पे भी बात हो रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी बात हो रही है, उसमें लोन माफी की भी बात हो रही है, तो इसमें टेररिज्म की भी बात होगी, मुद्रा लोन की भी बात होगी, सब बातें होंगी। टेररिज्म की बात क्यों ना हो? दुष्यंत, बिल्कुल बात करिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? टेररिज्म की बात होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल किसी को कोई आपत्ति नहीं है। देश में आतंकवाद नहीं होना चाहिए, देश में दंगा नहीं होना चाहिए, शांति, एकता, आपस में भाईचारा, प्रेम का माहौल रहना चाहिए। ये तो सभी लोग चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं। इनफैक्ट टुडे राहुल गांधी in Madhya Pradesh had said, Sanju Verma, and I'm just going to play that out in a second. Rahul Gandhi instead said that if there is anybody who is trying to create a state of harmony, it is me. आरएसएस और बीजेपी ने पिछले 8 सालों में सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति की है, एंड टेरर उसी का एक आउटकम है, दंगे उसी का एक आउटकम है। आज आप टेरर की बात कर रहे हैं, पर ये नफरत फैला कौन रहा है? आप। पद्मजा, आपको ये बता दूं, 1993 मुंबई ब्लास्ट की बात छोड़िए, समझौता एक्सप्रेस 2007, अहमदाबाद टिफिन ब्लास्ट 2008, वाराणसी बॉम्ब ब्लास्ट 2006 and 2010, Mumbai 26/11. When were all these terror attacks? When did all these terror attacks happen? They happened when the Congress was in power at the center. फिर बात करते हैं दंगों की। ये तो टेरर अटैक्स की है, मैं जल्दी से बोल दूं। 1987 हाशिमपुरा राइट्स, 1989 भागलपुर राइट्स, 2006 अलीगढ़ राइट्स, 2008 राइट्स इन धुले, 2010 राइट्स इन देगंगा इन नॉर्थ 24 परगनास, 2011 राइट्स इन भरतपुर, 2012 राइट्स इन कोकराझार इन असम, 2013 राइट्स इन मुजफ्फरनगर। ये सब कब हुए? जब मनमोहन सिंह
आपकी कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। इसीलिए टेरर अटैक्स और राइट्स पर कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही, जितना कम बोला जाए उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आपकी रिपोर्ट कार्ड इतनी खराब है। Padmaja, Okay, everyone wants to quickly rebut. Yes, Dr. Sumant Raman, then Lokesh Jindal. Yes. There has been. Let me finish. Let me finish, please. Let me finish. Padmaja, globally, there has been a significant reduction in the number of terrorist attacks in different countries of the Western and developed world. Don't take my word for it. Go and look it up. See the number of attacks that have been there in the last 5-6 years in vis-a-vis what was the situation in the previous 10 years. The reason very clearly is that there is now a global understanding between many countries. There is globally a reduction in terror attacks. Terrorism we had terror attacks in France, we had terror attack in Belgium. If anything, all of Europe is waking up to Islamic terror. And you are saying terror attacks are reducing. Padmaja, I'm sorry, Padmaja, if you are talking about a lone man going around with a knife and calling it a terror attack, that's up to you. I'm not calling it, sir. The kind of the UK, bomb the governments of those countries have called it a terror attack. I am not calling it. Blasts that have been. France called it a terror attack. Please. UK called it a terror attack. Padmaja, Belgium called it a terror attack. I'm sorry. I don't. No, I'm sorry. They may call it a terror attack, but the definition of what we faced earlier. Sir, if anything, Islamic fundamentalism is growing and the effects are now being seen in the Western world, not just in India. But the fact is that despite all of this, we haven't seen a terror attack nationally. Let me actually play out for you what Rahul Gandhi said today, and then I will get Harshvardhan Tripathi to respond. Yes, Rahul Gandhi. Okay. मेरी दादी को 32 गोली लगी थी, मेरे पिता को बम से मारा गया, मेरे खिलाफ हिंसा की गई, मगर जिस दिन मेरे दिल से डर मिट गया, उस दिन मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत रही है और कुछ नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आरएसएस से लड़ता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से लड़ता हूँ, मगर मेरे दिल में ना नरेंद्र मोदी जी के लिए ना आरएसएस के लिए नफरत, इतनी सी भी नफरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में डर नहीं है। बीजेपी से कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से कहता हूँ, अमित शाह जी से कहता हूँ, डर मिटा दो दिल से, नफरत गायब हो जाएगी। आप देश का नुकसान कर रहे हो, आपका डर जो है देश का नुकसान कर रहा है। तो इस यात्रा का मैसेज ये है, और ये हमारे जो बब्बर शेर आए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, राहुल जी का एनालिसिस है कि जब आप नफरत फैलाते हैं तो दंगे होते हैं और फिर आप उसी दंगों की गुहार दे करके वोट बटोरते हैं। ये है बीजेपी आरएसएस की स्ट्रैटेजी और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा। दंगों की सूची संजू वर्मा जी ने बताई, लेकिन नफरत तो फैली थी 1984 में, नफरत तो फैली थी, उसके बाद दंगे भी हुए थे। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं बार बार कहता हूं कि आप आतंकवादी के साथ खड़ी दिखे कोई भी पार्टी, राजनीतिक दल हमारा कोई देश का आतंकवादी नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं, मैं इस थ्योरी को नहीं ओन करता हूं। लेकिन आप उनके साथ सहानुभूति जताते हुए दिखे, आप उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया दिखाते हुए दिखे। और एक बात मैं कहूं, अभी सर्वोच्च न्यायालय ने छोड़ दिया, प्रियंका जी मिलकर आई थी, राजीव गांधी के हत्या के जो दोषी थे उन सब से उनको भी, मैं तो वो भी गलत मानता हूं। आप किसी भी तरह से देश के जो नायक हैं, देश के जो नेता हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ अगर नरम रवैया दिखाते हैं तो आप आतंकवाद को बढ़ाते हैं। अगर आप आतंकवादी घटनाओं में शामिल लोगों को देखकर कि वो किस मजहब के हैं, किस संप्रदाय के हैं, उसके आधार पर टिप्पणी करते हैं और कोई विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं, तो आप आतंकवाद को बढ़ाते हैं। मुझे लगता है ये मूल चिंता की बात है, ये है वो नफरत और डर की बात। और दंगे कब कहां हुए इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, क्यों होते थे ये भी पता है। और एक चीज मैं आखिरी जोड़ दूं, अमेरिका और दुनिया भर में अगर आतंकवादी घटनाएं कम हुई तो वहां की सरकारों ने बहुत कड़ा रवैया अपनाया, इसलिए हुआ। भारत में होता था, अब हमने भी उस पर काबू पा लिया। तो ये भारत की उपलब्धि है, इसका जनरलाइजेशन करना ये भी एक तरह का वो तरीका है। बनाया आपने जो आप साध्वी प्रज्ञा जी को आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों बनाया, जो अक्यूज है मालेगांव ब्लास्ट में? अगर आपको इतनी ही टेररिज्म से नफरत है तो इसका जवाब दीजिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, है कोई जवाब? वैसे तो मैंने नहीं बनाया है, भोपाल की जनता ने बनाया है।
दिग्विजय सिंह को हरा के बनाया, वही दिग्विजय सिंह जो आपने नहीं वही बनाया। अब भोपाल बात की तो जनता ने सुनिए बना दिया। लोकेश जी, आप बात नहीं सुनेंगे कोई तो कैसे elected साफ नहीं होगा? है, आपके वो दिमाग में भी जो elected उलझन नहीं होगी है मैं साहब। साफ कर देता हूँ ना। 2019 में भोपाल में साध्वी दिग्विजय प्रज्ञा ने सिंह को कि साध्वी हेमंत प्रज्ञा करकरे सिंह ठाकुर ने डिजर्व हराया करते थे ना। क्योंकि दिग्विजय सिंह नहीं, आप अजमल एक बात कसाब को बताइए। संघी साबित करना चाहते थे, साध्वी झूठ बोलते प्रज्ञा थे, ने फ्रॉड किया था, हेमंत करकरे जी के आतंकवादी मार्टन घटना डैम को को इस गाली तरह दी। से कोशिश की थी। 2019 और अगर में साध्वी प्रज्ञा ने दोषी कहा साबित होती कि तो हेमंत देश के करकरे कानून के डिजर्व लिहाज करते से थे वो सांसद मौत। नहीं बन पाती। इतना तो ज्ञान रख के आइए टीवी की बहस में। दोगलापन पूरा देश देख रहा है। साध्वी प्रज्ञा ने 2019 दोगले में लोकेश कहा, जिंदल मेरी बात तुम सुनिए होगे, अभी सुनिए आप। अभद्रता नहीं करो त्रिपाठी जी, अब लोकेश आप मेरी जिंदल। बात सुनोगे, अभी आप लोकेश मेरी बात जिंदल, सुनोगे। आपने जो बोलना था लोकेश आपने बोल दिया। जिंदल अपनी 2019 मर्यादा में रहो। साध्वी प्रज्ञा ने मैंने ये कोई क्यों निजी कहा टिप्पणी कि नहीं हेमंत करकरे की। और डिजर्व अगर करते नहीं थे तर्क मरना। आता है तो टीवी की मतलब बहस में इसका आने से मतलब बचा आपने करो, उनके स्वास्थ्य के लिए साधक अच्छा को, रहेगा। जो उन्होंने 2008 में मैं जो साधक कह रहा हूं Okay, okay, please, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करिए. Please, let's not make this into personal attacks. The fact is very simple that today, if in the Gujarat elections, the issue of terrorism is being brought up, should it be seen as an effort to try and polarize for votes, or as a simple message that what affects the life of people, rioting, terror attacks, this is not something that can be considered as only incidental to the lives and livelihood of people. And if Gujarat has managed to move ahead on that front in 27 years, should that also come up in the course of campaigning? We'll leave it to your wisdom. Thanks very much, all gentlemen, and Sanju Verma for having joined me. Of course, the last few hours are left for campaigning for phase 1, and the very best of election action, you'll catch it right here on Times Now.